Hello, good morning, FI BCom students. Hello. Hello, good morning, FI BCom students. Can you hear me properly? Yes, ma'am. Okay, let's start. So, in the last week, we were discussing about that grapevine, advantages and disadvantages of the grapevine. Now, we will start with the new. Okay, so here one case study or one example is given. Just look at here. The Somnath Hospital and the nursery home was making handsome profit, except the fifth floor nursing section where the service was poor and the patient treated badly. Fully aware of the problem, the management decided to close down the section and open the pediatric ward in its place. It was decided that the staff of nursing section would not be sick, but would be absorbed in the other departments. The management felt it would be good idea to let Mrs. Sawant and head of the nursing section into the secret to gain her cooperation. But Mrs. Sawant, who was the wife of the trade union leader, did not take kindly the idea of losing her special position. Though she pretended to go along with the management at the meeting, the next day the information was leaked in the selective manner. One day, after the stories were circulating like a wildfire about the hospital being closed down and shopping complex coming up in its next place, several nurses fearing that they would lose their jobs broke into the tears, and the doctors huddled in the group discussing their future, and the patients were greatly upset. So here, that what is the meaning of grapevine? We already discussed. The here one example is given that there is one hospital, and in that hospital the patients were not treated properly. The nursing staff were not did not pay attention to them, and instead of that, that who is the Mrs. Sawant, who is that head of the nursing section, and she wants to keep her what we can say that prestige, or she wants to keep her seat as along with her. But sometimes it happens that whenever the ideas suggested by the management, she did not pay attention. And after onwards, for the next morning, that the new shopping center or shopping complex would be in the place of nursing home. So this is the example of grapevine. Now we will discuss the next new question, that consensus and consultation. What is the meaning of consensus? Here it is written, ekmat, unity. In short ways, we can say that when there is a common agreement of opinion among the group of the person is known as consensus. You have to remember the definition of consensus means that among the group, every person is agree with particular opinion, is agree with any particular opinion. Okay, so it is called consensus. Like students of commerce are familiar with the idea of passing resolution by the consensus. The resolution is passed without discussion by merely circulating copy and obtaining the approval of the members on it. The idea of consensus is also familiar in the politics. For example, certain politics parties choose their leaders by consensus. And in both these instances, one cannot believe that some members do not have opposite views. All that it means that in the interest of harmony, the members have chosen not to express the divergent views or have them recorded in the minutes by the ways of dissent. तो उसका मतलब क्या means the person means here that consensus means every people or every group of the members should be agreed with the particular opinion. So it is called consensus. Here it is
one example is given that, for example, commerce students. Our commerce students is related about the resolution. What is the meaning of resolution? What is the meaning of resolution? What is the meaning of resolution? Resolution का मतलब क्या? What is the meaning of resolution? Do you listen me? Do you listen me? The commerce student is agreed with resolution. Resolution का मतलब क्या? Resolution means the act of finding answer or solution to the conflict. Means कि हमारे कॉमर्स स्टूडेंट को पता है कि रिजोल्यूशन किस तरह से लाना है. ओके, जैसे हम फॉर एग्जांपल सम्स अप्लाई करते हैं या सम्स हम जब भी ट्राई सॉल्व करने का प्रॉब्लम होता है उसको एक पर्टिकुलर हम रिजोल्यूशन कहते हैं. सो हियर other is example given. In political parties, the leaders are also chosen by the consensus. Means every member come together and they would choose the new member. Okay, but it doesn't mean that they don't have that negative views. They also have the opposite views or the negative views. But it means that whenever the harmony of the members have chosen, that harmony of the members have chosen to express, not to express the divergent views, but to give particular result to that particular member. Do you understand? Do you understand? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. They have expressed their trust in the leadership of organization by agreeing to abide by its recommendation and have subordinated their private views to avoid unnecessary conflict and disagreement. So whenever the discussion is going on, I am talking about the leadership. Whenever the leader is chosen in the organization, means it is the work of or it is the duty of the leader to resolve the problem, not to create the problem. Understand? Consensus communication is very necessary at the management level, as the management of the organization has to present outside the public and its own employees with the image of solidarity and unity. It would not do for the secretary to issue the circular letter to the shareholders if the chief account sent another shareholders and contradicting what the secretary had written. Okay, that in short way it is said that it is the duty of leader or it is the duty of secretary. It is the duty of secretary. Just a minute. It is the duty of secretary whenever the problem is going to be solved. It is solved by the secretary, not to create the issue. यहाँ पे देखिए लिखा है to issue the circular letter to the shareholders. तो किसी के भी साथ काम करना हो, शेयर होल्डर के साथ काम करना हो या चीफ अकाउंटेंट के साथ काम करना हो, तो सेक्रेटरी की जिम्मेदारी क्या होती है? सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाए. ओके, दूसरा यहाँ पे लिखा है कि इफ द चीफ अकाउंटेंट सेंड अनदर टू द शेयर होल्डर्स कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट द सेक्रेटरी हैड रिटन. अगर सेक्रेटरी ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लेटर भेज दिया कि जिससे इश्यू खड़े हो गए, तो फिर यूनिटी यहाँ पे दिखाई देगी. यूनिटी यहाँ पे दिखाई देगी. कैन वी सी द यूनिटी अमंग द मेंबर्स? नो ना. कैन वी सी द यूनिटी अमंग द मेंबर्स? डू यू लिसन मी? डू यू अंडरस्टैंड? Yes or no? Hello. Do Yes, you ma'am. do you understand? Yes, ma'am. Okay. आगे का देखते हैं. आगे का देखते हैं. There are many specialists at the management level, and the mutual respect is shown by accepting and supporting the view of specialists, even if one privately disagrees. Of course, one director may communicate his disagreement privately to the other director,
but should the latter the stand firmly by his views, and it would be the best to accept them gracefully. Okay, what happened? Whenever the management, I'm talking about the management, okay, at the management level, the specialists are also there. It is the work or it is the duty of every person, those who are engaged in the management level. फॉर एग्जाम्पल जैसे नरेंद्र मोदी, ओके, आप सुन रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डू यू लिसन मी? Yes. नरेंद्र Yes, मोदी, ma'am. ओके, तो उनका जो डिसीजन होता है कि बाबा अभी 370 हटाना है या कुछ करना है, 370 करना है, तो उसके लिए श्रुतिजा कुछ पूछना चाहते हैं? श्रुतिजा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? तो नरेंद्र मोदी का कोई भी जो डिसीजन होगा, तो वो जो उनका मैनेजमेंट होता है उसमें स्पेशलिस्ट का भी हेल्प लिया जाता है. इट डजंट मीन कि ओनली नरेंद्र मोदी का वो डिसीजन होगा. ओके, सो दैट इज द थिंग. इफ वन पर्सन give the opposite view or negative views, but though one director may communicate his disagreement privately to the other director and accept them gracefully, कि उसको gracefully accept किया जाता है. अगर उसको ये पसंद नहीं है, किसी एक डायरेक्टर को ये पसंद नहीं है, किसी एक डायरेक्टर का जो व्यू है, तो वहां पे भी उसको प्राइवेटली उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जाता है. हाँ, आगे देखते हैं, मीन्स कुछ ऐसे ग्रेसफुली उनके साथ बात होती है. Thus, if the director who is architect express the view that old factory building will not be bear the weight or the further construction, it would be best to accept this opinion as a final. यहाँ पे कैसा बताया कि एक डायरेक्टर है जो आर्किटेक्ट है, उसने he express his view that his opinion is that old building of the factory is not in a proper way, कि उसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी अभी पुराना है, तो अभी उसको नया करने का टाइम रह गया है, ऐसा बताया है. Frequent consultation are necessary at the management level, as without this the executive will not be able to know each other's views and express consensus. कि जब फ्रीक्वेंट कंसल्टेशन, कि जब आपका ओपिनियन लिया जाता है नेसेसरी है मैनेजमेंट लेवल में, उसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता. कि जब मैनेजमेंट लेवल में सभी प्रकार की बातें होती है, तो वहां पे सभी प्रकार का सबका ओपिनियन लिया जाता है. तो एक साथ कि सभी एक साथ रहने से या एक साथ जब उनका ओपिनियन पता चलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनमें यूनिटी बनी रहती है. Another aspect of this process, mutual respect and mutual consultation in the acceptance of the authority of the chairperson and the president unquestioningly. यहाँ पे क्या बताए कि दूसरा जो एस्पेक्ट है कि जब एक दूसरे से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका व्यू लिया जाता है, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देता है. म्यूचुअल कंसल्टेशन वहाँ पे दिखाई देता है कि अथॉरिटी है, तो अथॉरिटी का चेयरमैन है, उनका भी व्यू वहाँ पे लिया जाता है. प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे व्यू लिया जाता है, कि वहाँ पे कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा. दिस इज स्पेशली इम्पोर्टेंट व्हेन टू एग्जीक्यूटिव्स, both expert in the particular field, express conflicting views. ये कभी पॉसिबल है कि जब भी दो एक्सपर्ट साथ होते हैं, दो एग्जीक्यूटिव साथ होते हैं पर्टिकुलर फील्ड में, और जब अपना व्यूज एक्सप्रेस करते होते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स एक का अलग है दूसरे का अलग है, तभी यहाँ पे चेयरमैन और प्रेसिडेंट का व्यू लिया जाता है. इट इज द ट्रस्ट दैट द ऑफिशियल प्लेस इन द प्रेसिडेंट ऑफिसर that makes collective decision making possible. तो उसकी वजह से क्या पॉसिबल हो जाता है कि ऐसे प्रकार की जब सिचुएशन या परिस्थितियां आ जाती है, तो उस टाइम जब प्रेसिडेंट और चेयरमैन का वहां पे व्यूज लेना या उनका क्वेश्चन पूछना या उनका हम बोलते कि उनसे कुछ बातें करना, ये उनका जो व्यू होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे अभी मुझे आपसे एक शिकायत है
कि अभी मुझे बहुत ही कम बचे, जैसे इनिशियली मुझे आउट ऑफ 100 में से 50 बच्चे दिखाई देते हैं, अभी तो अटेंडेंस बहुत ही कम है। क्या पता नहीं आप क्या व्यूज लेके बैठे हैं, जो अभी मैं व्यूज पढ़ा रही हूँ, तो ये तो आप गलत फहमी में, आप अपने दोस्तों से भी कहिए कि अगर हम लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये बात याद रखे कि शायद कुछ भी आप अपना दिमाग में क्या लेके बैठे मुझे पता नहीं कि कैसे एग्जाम होने वाली है कैसे नहीं, ये तो आप अपने समय पे छोड़ दीजिए, लेकिन आपका जो हम बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस, वो होना चाहिए एग्जाम को लेके, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है। आगे का देखते हैं। द demerit of consensus process is obvious. The member of the group is made to subscribe the view that it does not hold. Very often, the consensus process becomes one mutual accommodation. तो यहाँ पे हम जब कंसेंसस एक मत की बात करते हैं और यूनिटी की बात करते हैं, वो ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस जब लंबे तक चलता है तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें ज्यादा दिखाई देती है। और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और दूसरा है इट गिव्स द एक्सप्रेशन ऑफ इनडिसिसिव मैनेजमेंट एंड अलाउज द फ्यू इंडिविजुअल्स टू डोमिनेट। उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रेशन ऑफ एन इनडिसिसिव, कि मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए काबिल नहीं, ऐसा कभी कभी उनका इम्प्रेशन हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट दूसरों लोगों को चांस देते हैं इसकी वजह से। और दूसरा होता है कि जो इंडिविजुअल होता है, जो व्यक्ति अपना व्यूज बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उसका डोमिनेशन हम पे यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मैम ये पॉइंट फिर से बताइए ना। कौन सा वाला? लास्ट वाला, ये वाला? हाँ लास्ट वाला। जैसे हम अभी कंसेंसस और कंसल्टेशन मीन सबका, हम बोलते हैं कि सबका व्यू लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल हम अपने घर में रहते हैं, ओके, कि तो घर में रहते हैं जब भी हम, तो जो घर के सपोज जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो उसको हम सपोज फॉर एग्जांपल दे वी विल कंसिडर देम एज अ चेयरमैन, ओके, और वी विल कंसिडर देम एज अ प्रेसिडेंट। समझा? एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो हम यस मैम। उनको प्रेसिडेंट की तरह से हम एक एग्जांपल में लेंगे। तो जब भी हम घर की बात करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जब सब भी साथ में बैठे हुए होते हैं, सब अपना एक्सप्रेशन अलग अलग होता है। एक्सप्रेशन में सबका व्यूज अलग अलग होता है। एक बात का यस मैम। डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सबका व्यूज कैसा होगा? अलग अलग होगा। सब अपने अपने नजरिए से देखेंगे। हाँ, some are agree and some are disagree. ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि सबका हम जब डिसीजन लेने की बात करते हैं, तो सबका ओपिनियन भी जब लेने की बात करते हैं, तो वो ज्यादा क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, उसमें वक्त लग जाता है। और दूसरा हो जाता है कि यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है और ऐसा दिखता है कि जो बड़े हैं वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, वो आपको चांस डजंट मीन कि आप वो डिसीजन लेने के काबिल नहीं है। ऐसा मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, लेकिन मैनेजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता। समझा? यस मैनेजमेंट मैम। कभी भी गलत नहीं हो सकता। और दूसरा होता है कि जो हम ओपिनियन में फॉर एग्जांपल जब हमारी राय ली जाती है, तो घर में हमारी राय ली जाती है, तो हमें क्या लगता है कि हाँ हमारा डोमिनेंट बढ़ रहा है, हमें पूछ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? यस हमें मैम। पूछ रहा है। सो इट Yes, ma'am. ऑल्सो Yes, ma'am. happens with the employees, it also happens with the workers. Get it? Get it? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, ये आपका बुक का ही है, आगे का था वो भी बुक का ही था। अभी आगे का पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, अभी दिख रहा है? यस अभी दिख मैम। रहा है? ओके। Yes, Consultation ma'am. and consensus go together, for it is only the mutual consultation and consensus can be arrived at. The student should study the diagram given below. It describes what is known as cycle of consultation. ओके, अभी ये देखिए, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब क्या? तो यहाँ पे देखिए,
As shown in the diagram, consultation is forwarded-looking process that it is a decision based on the mutual consultation which result in the instruction or issue, which take the form of action. The result of this action are again the process of discussion and consultation. Okay, यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे दिखाई देता है कंसल्टेशन पहले Yes, ma'am. दिखाई दे रहा है, उसका बाद क्या दिखाई देता है, सेकंड पॉइंट डिसीजन, डिसीजन दिखाई देता है, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Yes, उसके बाद इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के बाद क्या दिखाई देता है, एक्शन. Action. ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना है जो आपको जल्दी समझ में आए कि फॉर एग्जाम्पल हम क्लास ले रहे हैं, ओके, फिजिकली हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ और कोई टीचर पढ़ा रहा है, ओके, कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे क्लास में मस्ती कर रहे हैं, ओके, बहुत ही बड़ा मजाक कर रहे हैं, उनका बिहेवियर ठीक है, उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो कुछ टीचर उनको डांट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उनको डांट देती हूँ, ओके, मैं उनको डांट देती हूँ, फिर वो टॉपिक कहीं बार पे भी डिस्कस होता है, आपके क्लास में भी डिस्कस होगा, एम आई राइट? टीचर ने Yes, डांटा ma'am. तो आपको क्या लगा है, टीचर तो डांटते ही रहते हैं, लेकिन आपको अपनी गलती समझ में नहीं आती, फिर टीचर में वो बात आती है, ओके, टीचर में आज एक टीचर को परेशान करे, कल दूसरे टीचर को परेशान करे, कल तीसरे टीचर को परेशान करे, फिर वो बात हम बोलते हैं कि डिस्कशन हो रहे हैं, ओके, डिस्कशन हो रही है, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, कंसल्टेशन, समझ में आ रहे हैं? कंसल्टेशन पहले है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि ये बच्चों ने इस तरह से कुछ किया, तो उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाता है, हम टीचर में डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, अगर इस प्रकार का किसी ने बिहेवियर किया तो इस प्रकार का उनको पनिशमेंट मिलेगा, एक्शन, समझ में आया? Yes, ma'am. समझ में आया? yes. एक्शन, तो ये उसको बोलते हैं कंसल्टेशन, डिसीजन, इंस्ट्रक्शन और एक्शन, दे आर वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग टुगेदर. दूसरा एक एग्जांपल देना हो तो, ओके, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, घर में कोई व्यक्ति बीमार है, ओके, तो हम उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ओके, उस डॉक्टर की दवाई का कुछ उसके असर नहीं होता है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि नहीं, यस, कंसल्टेशन मीन उसका रिलेटेड जो उसका प्रॉब्लम है दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ओके, अगर वहां भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम तीसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ओके, तो फिर घर में क्या डिस्कशन होगा कि अभी ये डॉक्टर, कोई डॉक्टर की दवाई काम नहीं करे तो हम कोई बड़े डॉक्टर के साथ उनको लेके जाएं, ओके, डिसीजन, घर में डिसीजन होगा, ओके, उसके बाद इंस्ट्रक्शन कि अभी आप यहाँ पे जाओ, उस व्यक्ति को वहां पे भेजा रहेगा, बड़े डॉक्टर के पास भेजेगा, और बड़े डॉक्टर के पास, जैसे डॉक्टरों में भी होता है कि नहीं, डॉक्टर में भी कंसल्टेशन होता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल जब आप बीमार होते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक ही डॉक्टर सब कुछ निकालता है, एक ही डॉक्टर सब कुछ आप पे काम करता है क्या? हाँ, चेक करने का, उसका सोनोग्राफी निकालने का, उसका जो जो No, प्रोसीजर ma'am. होते हैं, नहीं, उनका कंसल्टेशन होता है कि नहीं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ब्लड लेना है वो अलग है, लेबोरेटरी अलग है, जहाँ पे यूरिन लेते हैं वो एक अलग होता है पोर्शन, वो डिपार्टमेंट अलग होता है, जहाँ पे सोनोग्राफी किया जाता है वो डिपार्टमेंट अलग होता है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और उसके बाद एक्शन स्टार्ट होता है. डू अंडरस्टैंड राइट नाउ? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. Consultation may take place at the level of individuals or at the group level in the form of meeting. In the consultative supervision, the manager or the supervisor consults his workers either individually or at the informal meeting before arriving at the decision. While listening to the viewpoint of workers, his attitude is helpful, not condescending or the superior. That he also takes care to see that in the process of consulting the workers, he is not undermining the authority of the supervisor. Okay, तो जब हम मैनेजर की बात करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पे भी कंसल्टेशन लिया जाता है, ओके,
बाकी के ग्रुप में, उनके ग्रुप में भी कंसल्टेशन दिया जाता है। तो वो किसका ड्यूटी रहता है? सुपरवाइजर का रहता है। किसका रहता है? कंसल्टेटिव सुपरविजन के अंदर कौन आता है? मैनेजर और सुपरवाइजर। तो वो जब भी अपने वर्कर को मिलने जाता है, whenever he is going to meet his worker, his attitude, how is attitude? He is a very helpful person. He is not superior because he comes here to listen your views, to listen the views of workers. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes or no? Do you understand? Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, from the point of view of internal communication, the administration consensus and consultation process has distinct advantages. तो जब उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने देखा, अभी एडवांटेजेस देखेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, उसका बात किया गया है। इट कैन बी यूज्ड वेरी प्रॉफिटेबली by the manager while dealing with the chronic questions like bonus, retrenchment, service condition, by consulting the union leaders or the worker representative. तो जब भी मैनेजर और मैनेजमेंट अपने वर्कर के साथ में उनका जो यूनियन लीडर होता है ना, वर्कर का, उनका हेड होता है कि नहीं होता है? वर्कर लोगों का हेड होता है ना, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव होता है ना। यस और नो? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. होता है। हाँ, उनके Yes, साथ ma'am. कैसे, किस तरह से इंटरनल कम्युनिकेशन में किस तरह से उनके साथ बात की जाती है कि फॉर एग्जांपल जब भी वो बात करेंगे तो उनके बोनस को लेके, रिट्रेंचमेंट मीन्स खर्चा कैसे कम किया जाए। ओके, कि फॉर एग्जांपल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड खर्चा कैसा कम किया जाए, अभी उनका सर्विस कंडीशन कैसा है, उस पे उनकी बात होती है। While it is difficult to expect consensus or the complete agreement, such meetings, it is definitely helpful as it enables the union leaders ventilate their grievances and avoid great deal of the trouble which might otherwise be stored up. तो जब भी यूनियन की बात आती है, वर्कर्स की बात आती है, तो वर्कर्स की मांगे क्या होती है ज्यादातर? मुझे बताइए, which are the demand of the workers? Which are the demand of the workers? क्या होती है? पहले होता है कि अच्छा पगार उनको मिले। हाँ, मीन्स अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से उनको काम भी करना चाहिए, Yes, उसके ma'am. हिसाब से काम भी करना चाहिए। तो ये जब इस टाइप की मीटिंग होती है यूनियन लीडर्स के साथ, तो ज्यादातर आपको ऐसा लगता है कि वो सभी बातों पे मैनेजमेंट अग्री करेगी? नहीं। नहीं। ओके, अभी वेंटिलेट का मतलब क्या होता है? टू डिस्कस और टू एक्सप्रेस। वेंटिलेट का मतलब होता है टू डिस्कस और टू एक्सप्रेस। तो जब भी यूनियन लीडर्स के साथ इस प्रकार का कुछ मीटिंग होता है तो वो अपना कंप्लेन एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है? जैसे हमने फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखा था, डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन में देखा था, याद आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. और ज्यादा से ज्यादा जब वर्कर्स के साथ मीटिंग किया जाता है मैनेजमेंट का, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसका ध्यान रखा जाता है। द ट्रबल, ग्रेट डील ऑफ ट्रबल विच माइट अदरवाइज वुड बी स्टोर अप, उनको साइड में रखा जाता है। साइड में रखा जाता है मीन्स उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मीटिंग की जैसे मीटिंग होगी या झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। ओके, दूसरा है by consulting workers their sense of participation in the management process is increased. When subordinate is given an order after he is consulted, he does not rescind the order but looks upon it's the solution a problem which has helped to reach. तो जब भी वर्कर के साथ workers, whenever the workers are going to participate in the management process, it is increased. This process is increased. Consulting process is increased. And at that time, the subordinate means the person of management and the person of workers also,
subordinate, he is consulted and he does not rescind the order. बारी बारी वहां पे ऑर्डर नहीं दिया जाता है, लेकिन उसका क्या किया जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो वो जो सबऑर्डिनेट होता है उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? सबऑर्डिनेट कौन होता है पता है क्या आपको? Who is the subordinate? Who is the subordinate? मीन्स फॉर एग्जाम्पल वो मैनेजमेंट का भी सुनता है और जो वर्कर्स की मांगे भी सुनता है, वर्कर्स का भी सुनता है। जो बोलते हैं ना कि हाँ सुलह करने वाला इंसान, सुलह करने वाला इंसान उसको बोलते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। समझा? यस मैम। समझा? ओके, आगे का देखते हैं। It helps to build and develop managerial skills among the junior officers and subordinates. Education for succession. तो ये क्या करता है कि ये जो प्रोसेस होता है कि जैसे हम बोलते हैं कंसल्टेशन, तो क्या करता है मैनेजर स्किल पे, आप पे जूनियर ऑफिसर्स है तो उनके लिए एक मैनेजर स्किल डेवलप करता है। जैसे मैनेजमेंट में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर फ्रेशर्स सब होते हैं कि नहीं होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। इट फॉस्टर द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, हेल्प्स टू फॉरस्टॉल द इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। तो यहाँ पे उसका क्या बताए कि डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब क्या? It foster means to describe the situation for the particular time. Are you writing? Will you write some words? Hello? यस मैम। Will you write the meaning of the words? Foster का मतलब है to express something for the particular time. To describe the situation or to describe something for the particular time. Okay, तो यहाँ फिर पे से बताइए। to describe situation, foster का मतलब FOSTER, to describe situation for particular time. For particular time. ओके मैम। With parental care. With parental PARENTAL, parental care. With parental care. ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इट फॉस्टर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड हेल्प टू फोरस्टॉल इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। फॉस्टर मीन्स सभी को, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मीन्स उसको हम लोकशाही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री से लेके हर एक इंसान का वहाँ पे पर्सनल या हम बोलते हैं ऑफिशियल जो भी काम है वहाँ पे उनको क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। कौन ध्यान देता है? मैनेजमेंट ध्यान देते हैं, सबऑर्डिनेट ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट ज्यादातर ध्यान देता है, वहाँ पे हर एक वहाँ पे उनका हर एक का ध्यान रखा जाता है जिससे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बनी रहती है। और दूसरा होता है कि जो इंडस्ट्री में अनरेस्ट मीन्स जो बेचैनी, अनरेस्ट को क्या बोलते हैं? बेचैनी मीन्स जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। कंसल्टेशन और कंसेंसस किस लिए रखा जाता है? क्योंकि हर एक का व्यूज हमको पता चलना चाहिए। समझा? यस मैम। समझा? ओके, आगे का बात करते हैं। आगे का बात करते हैं। It helps to project an image of unity and harmony in the organization by increasing trust between the supervisors and workers, and also leads to the improved morale. So what it does mean?
that whenever subordinate or workers are coming together, they are discussing in the meeting for the particular topic. It shows that it is the image of unity, it is the image of harmony, that we can see the harmony among them, and it leads this kind of the harmony leads to the morality. Do you understand? Do you Yes, understand? ma'am. ओके, मैं आपको कुछ एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मधुमक्खी होती है ना, मध हम बोलते हैं शहद, मधुमक्खी। हाँ शहद होता है कि नहीं, शहद वो कौन लाता है, Yes, ma'am. ढूंढ के कौन लाता है, ढूंढ के कौन लाता है, मधुमक्खी लाती है ना, शहद कौन, मधुमक्खी। हाँ, yes, ma'am. मधुमक्खी लाती है। ओके, तो शहद कितना मीठा होता है कि नहीं, शहद मीठा होता है ना, Yes, ma'am. पर उसको Yes, कलेक्ट ma'am. करने में टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। एम आई राइट? जो Yes, ma'am. मधुमक्खी होती है उसको वो शहद कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो हमारा लाइफ भी कुछ ऐसा ही है, उसका रिलेशन हमारे लाइफ से, वो कैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि हार्मनी और यूनिटी, तो वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मिलजुल के रहेंगे, कि हम बहुत कुछ बातें लोगों की इग्नोर करेंगे, घर में हो या बाहर हो, तो हम कैसे रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं। अगर हमें मीठा फल चाहिए मीन्स मैं क्या बता रही हूँ कि हमें आपको खुश रहना है, तो कुछ हमको क्या करना पड़ता है, कुछ बातें क्या करनी पड़ती है, अवॉइड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है अवॉइड करनी पड़ती है। अवॉइड करनी पड़ती है, घर में हो या बाहर हो। अगर आप खुश रहना चाहते, खुद खुश रहना चाहते हैं, तो सबकी जो बातें, ज्यादा बातें दिल पे लगा लेने से क्या होता है, हम दुखी हो जाते हैं। फिर हम हार्मनी में काम कर सकते हैं क्या, हार्मनी में? नहीं, कि फॉर एग्जाम्पल हम नहीं। सबके साथ झगड़ा करके बैठे, तो फिर हमारे साथ कोई काम आएगा क्या, काम नहीं आएगा? आएगा। नहीं आएगा। सो दैट इज कॉल्ड हार्मनी। हाँ, यूनिटी होना चाहिए। जैसे महाभारत आपने देखी है ना, पढ़ी नहीं Yes, होगी ma'am. शायद, तो उसमें क्या था, यूनिटी थी, कौरव और पांडवों में यूनिटी था क्या, हार्मनी था? नहीं मैम, नहीं था। नहीं था। क्यों नहीं था? कौरव किसकी सलाह लेते थे, किसका एडवाइस लेते थे? कौरव कौन सी व्यक्ति का एडवाइस लेते थे? शकुनी का। शकुनी का। हाँ, जो दिमाग में, जो कान में जहर बसा उसका एडवाइस देते थे। तो उनमें खुद में यूनिटी थी, अगर वो चाहे तो रह सकते थे ना, लेकिन उनका जो Yes, हम ma'am. बोलते हैं कि यूनिटी नहीं था, उसकी वजह से वहाँ महाभारत हुआ। अभी समझ में आया? Yes, अभी ma'am. समझ में आया? ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। Consensus and consultation process has some distinct disadvantages. अभी तक हमने advantages देखा, अभी हम disadvantages देखें। It becomes an exercise in mutual accommodation. At the meeting, one manager will not oppose the doubtful proposition of another manager as his own doubtful proposal is on an agenda. He wants the support for it. क्या बताया है कि एजेंडा, आपको पता है क्या बोलते हैं, एजेंडा का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंडा? यस और नो? एजेंडा मीन्स द पॉइंट और द टॉपिक विच वर रिटन ऑन द पेपर ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो पॉइंट होता है, पेपर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वहां पे पेपर में लिखा होता है, उसको हम एजेंडा बोलते हैं। यहाँ पे क्या पता है कि इफ वन मैनेजर कैन नॉट अपोज अनदर मैनेजर though he is a doubtful proposition, he cannot oppose the another manager, but at that time he wants the support for it. Thus the manager accommodate each other and interests of the company are made to suffer. So whenever both the managers come together and work together, they can think about the interest of the company. Okay, otherwise what happens? The company has to suffer a lot. Do you understand? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, मैं आपको मोहम्मद